Hello everyone, welcome back to Smriti Lakhwani YouTube channel, and today we'll be continuing with our biology chapter 1 MCQs. So I've probably done these before, but this is like a new video as we have done the revision of chapter 1. So I guess it's very needed to like we recap everything that we have learned. So like there's like something 8 pages of MCQs that I have for you guys, and let's solve it first and then we'll check answers and then we'll have the marks and stuff. So the first comes to be diagram shows the female reproductive organ. Okay, so here you guys can see the female reproductive organ. Which level of organization are in the structure? So it's a level of organization. We know we have cell, ठीक है, फिर हमारे पास टिश्यू है, फिर हमारे पास क्या है, ऑर्गन है, फिर भी है ऑर्गन सिस्टम. तो हमें ऐसे करना है, ठीक है. तो आई टोल्ड यू गाइस द की कि ये कैसे होगा. तो सबसे पहले लेट्स आइडेंटिफाई कि क्या है, बिकॉज दे विल हेल्प अस अ लॉट इनटू दिस नाउ. तो ये W है, आई मीन इट्स सो बिग, सॉरी, ठीक है. तो ये W है. अब ये W क्या है, ये जो है आई गेस दिस इज अ टिश्यू. Z इज अ ओके ऑर्गन सिस्टम. आई गेस W इज अ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है. तो इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होंगे. तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया. ठीक है. देन फिर अगर हम बात करें वाई डाई की, तो इट सीम्स वाई जो है, जेड जो है इट्स अ टिश्यू, ठीक है. वाई इज़ अ ऑर्गन एंड एक्स जो आ रहा है वो सेल आ रहा है, बिकॉज वो छोटा सा इफ यू गाइस सी, तो यहाँ पे सेल आ गया. तो आर ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो हो रहा है बी मैच हो रहा है. सो आर आंसर इज बी. फिर हमारे पास है अ प्लांट इज ग्रोन इज इन अ ब्राइट सनशाइन. प्लांट है जो ब्राइट सनशाइन में ग्रो हुआ है. आफ्टर फ्यू आवर्स उसको हमने आयोडीन सोल्यूशन से लेनी करती है, ठीक है जी. अब बोल रहा है कि अगर उसके बाद कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो ब्लू ब्लैक स्टेन हो जाएगा. तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो स्टेन हो जाता है ब्लू ब्लैक में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. बिकॉज हमारा साइटोप्लाज्म तो नहीं होगा, राइट, वी नो दिस थिंग. जो हमारे पास बचा तो वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा. सो आई गेस दिस इज डन. फिर डन विद लाइक दिस पेज. सो आई गेस ये लगा देती हूँ ताकि यू हैव काइंड ऑफ. अब इट्स द टेबल शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. लाइक देयर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. विच सेल शुड बी अ रूट हेयर सेल. तो रूट हेयर सेल में वी डू हैव क्लोरोप्लास्ट. नो वी डोंट. यस वी डू. आई रिमेंबर. ओके, सो nucleus. Yeah, we don't have in root hair cell, we do not have chloroplast. So then we have nucleus. These are not going to be because every cell has a nucleus, so B will be our answer. The diagram shows 3 different cells not drawn onto the same scale, which are the animal cells. So we know that 2 and 3 is the animal cell because this is red blood cell or white blood cell or this sperm cell. So 2, 3, C is the answer. When a red stain is added to a culture containing both living and dead cells, okay, only dead cells take up the stain. Yeah, which structure represents the stain structure? Cell membrane, of course. Yeah, we're done with this. Then we have another. Here it says the diagram shows the plants which are not found in the animal cell. What is not found in the animal cell? Okay, सबसे पहले तो we have cell wall which is number 1, and फिर हमारे पास chloroplast 1, 3. So B will be our answer. उसके बाद human cheek cell and spongy mesothelial cell both are examined under membrane. So which structure are seen in both cells. मतलब बोल रहा है कि एक human cheek cell है, एक spongy mesothelial cell है, ठीक है. अब सेल फ्रॉम अ लीफ आर एग्जामिन्ड एंड अब क्या दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा. तो ए विल बी आंसर. व्हाट इज फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स.
Cellulose, cell wall, no. Chloroplast, no. Starch grain, no. D, vacuole or vacuoles, yes. Then we have something this. अब here says कि which processes, okay, so this is chapter 3 related to which processes can take place in root hair cell when oxygen is not available. अब हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं, तो रूट हेयर सेल में क्या हो सकता है? डिफ्यूजन, active transportation osmosis only, diffusion osmosis only. Okay, so active transport will तो फिर अभी नहीं होगा. Diffusion osmosis both can happen, I guess. So D will be our answer. The diagram represents a cell under the electron microscope. What type of the cell it is? A plant cell, and cell wall is visible. So this will be D will be our answer, right? Yeah, D is our answer. Here we have the photograph shows an onion epidermis. Which term describes the onion epidermis? It's a tissue. D is our answer. Which term describes the parts of a plant? Okay, the parts of plant. प्लांट में क्या होता है? ऑर्गन, टिश्यू. देखो अब इट्स लीफ है, लीफ मेसोफिल, लीफ एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस भी एक टिश्यू है, मेसोफिल भी एक टिश्यू है. तो ऑर्गन वैसे टिश्यू. तो बी विल बी आवर आंसर. उसके बाद वी हैव द डायग्राम शोज द प्लांट सेल. द प्लांट सेल इज स्टेन्ड विद आयोडीन सोल्यूशन. हेयर सेज कि हमारे पास सेल वॉल के अंदर स्टार्च ग्रीन के अंदर कौन सा कलर आएगा? सेल वॉल विल हैव ऑरेंज ब्लू एंड फिर स्टार्च ग्रीन जो होगी वो हमारे पास ब्लू ब्लैक हो जाती है. C will be our answer. Which diagram shows the position of chloroplast in the nucleus? मतलब कौन सी पोजीशन बिल्कुल ठीक है? So okay, so here अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस गया हुआ है, which is wrong. इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल के अंदर चले गए. इसके अंदर it seems all correct and it is the answer. इसके अंदर we do not have a vacuole, so this is wrong. ठीक है, we're done with this one too. Which two structures are found in both plant epidermal cell? Cell wall chloroplast, cell wall nucleus. अच्छा, epidermal cells we have two. We have spongy and we have palisade. So cell wall nucleus is like the most, अगर हम common देख लें. उसके बाद which organelles are found in the both animal plant? Cell membrane and nucleus 1, 3. Okay. It says कि which rows collectively shows the cell structure and its location. कौन सा सेल स्ट्रक्चर उसका लोकेशन बिल्ड करती है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ सेल, बोथ प्लांट है. मेंटेन्स टगर, ये गलत है. सेल वॉल कंट्रोल द पैसेज, ये भी गलत है. मेंटेन्स टगर एनिमल सेल्स ओनली, गलत. अब ये सिर्फ मेंटेन्स टगर बट ये एनिमल सेल्स नहीं प्लांट सेल्स में मौजूद है, तो ए इज आवर आंसर. ठीक है, फिर वी हैव द डायग्राम शोज द सेलुलर स्ट्रक्चर्स. वो स्टेटमेंट्स अबाउट द थ्रीज आर करेक्ट. ठीक है, अब ए के बारे में अडेप्ट टू कैरी ऑक्सीजन, नो. अडेप्ट टू कैरी वाटर, येस, करता है वाटर कैरी. इज इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल, इज इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल. तो इन दोनों में से हम कुछ कर लेते हैं. अब इट ऑल्सो इज अडेप्टेड टू कैरी मिनरल्स. सो विल बी गोइंग फ्रॉम सी डी से कुछ होगा आंसर हमारा. अडेप्टेड टू कैरी वाटर, येस. इज इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल, नो. ठीक है, अडेप्टेड टू कैरी ऑक्सीजन, येस. लैक अ न्यूक्लियस, येस. ठीक है, पर वो एक ये जो स्टेटमेंट है हमारी इस कॉन्टेक्ट विद सॉइल उसकी वजह से हमारा सी आंसर होगा. उसके बाद वी हैव द डायग्राम शोज द प्लांट्स विच स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइज दिस इज द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. क्लोरोप्लास्ट देख लो, सेल वॉल देख लो. ठीक है, सो बी इज आवर आंसर. एंड येस, वी आर डन विद आवर all the biology MCQs of chapter 1 and we have almost done. Probably you guys might have confusion in some of those. You guys can ask me in the comment sections. This was fun to do and yeah, we got to know that this is like much we have learned. Thank you.